کریں گے مسیح کی ذات پر. ہم نے لاسٹ سنڈے مسیح یسوع کے بارے میں سیکھا اور مسیح یسوع کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا کہ مسیح یسوع کو ہم پر ظاہر کرنے کے لیے مقدس تثلیث موجود ہے. ہم تب تک مسیح یسوع کی شخصیت سے واقف نہیں ہو سکتے جب تک ہم مقدس تثلیث سے واقف نہ ہوں. آج بھی ہم مسیح یسوع کی شخصیت کے بارے میں ہی سیکھیں گے. اور مسیح یسوع کی شخصیت کی بات کریں تو آج ہم مسیح کی فضیلت کے بارے میں سیکھیں گے. انگلش میں اس کے لیے لفظ ہے پری ایمیننس. سب سے پہلا درجہ ہونا، سب سے زیادہ اہم ہونا، سب سے زیادہ رتبے میں اونچا ہونا. آج ہم مسیح کی فضیلت کے بارے میں سیکھیں گے. برائن کمبل ایک اینکر تھے CNN چینل کے. انہوں نے لیری کنگ، بڑی مشہور شخصیت تھے، ان سے انٹرویو کے دوران پوچھا، لیری کنگ اگر آپ کو خدا کو ملنے کا اتفاق ہو، خدا سے روبرو ہو سکیں، تو کون سی ایک بات ہے جو آپ خدا سے پوچھنا چاہیں گے؟ آپ جانتے ہیں لیری کنگ نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر مجھے خدا سے ملنے کا اتفاق ہو، یہ مجھے شرف ملے کہ میں خدا کے روبرو ہوں، تو میں خدا سے یہی پوچھنا چاہوں گا، کیا تیرا کوئی بیٹا ہے؟ بڑا عظیم سوال ہے اور میں جانتی ہوں آپ سب اس کا جواب جانتے ہیں. ہاں، اس کا اکلوتا بیٹا ہے جس کا نام یسوع ہے. ہاللیلویا. ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے جس کا نام کیا ہے؟ یسوع ہے. جان بلنچرڈ اپنی تحریر میں لکھتے ہیں، دنیا میں آج تک جتنے بھی سائنسدان آئے، جتنے بھی فلاسفرز آئے، جتنے بھی لوگ آئے، ان میں سے کچھ لوگوں نے اگر زمین پر، دنیا پر اپنا اثر چھوڑا اور دنیا میں کچھ تبدیلی پیدا کی، تو ان میں سب سے زیادہ شخصیت جس نے دنیا میں تبدیلی پیدا کی وہ مسیح یسوع ہے. ان میں سب سے زیادہ محبت اگر کی گئی تو وہ مسیح یسوع ہے. ان سب شخصیات میں سب سے زیادہ اگر مخالفت کا سامنا ہوا تو وہ بھی مسیح یسوع ہے. سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ اگر بنایا گیا تو وہ بھی مسیح یسوع ہے. سب سے زیادہ عظمت اگر کسی کو دی گئی تو وہ بھی مسیح یسوع ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے سائنسدان، جتنے فلسفہ دان آئے ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، ان میں سے کسی بھی سائنسدان کی، کسی بھی فلسفر کے، کسی بھی کریٹک کے الفاظوں کا، ان کے جو منہ سے الفاظ نکلے یا ان کی جو تعلیمات رہی ہیں، ان کو اتنا زیادہ تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا جتنا مسیح یسوع کے الفاظوں کو. ان کے الفاظوں کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی مسیح یسوع کے الفاظوں کو اہمیت دی گئی ہے. مسیح یسوع کے ہر ایک لفظ کو چھانا گیا، چھانٹا گیا، پڑھا گیا، اسٹڈی کیا گیا، مطالعہ کیا گیا، بحث مباحثے کیے گئے. آج 2023 سال بعد بھی کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں ہے جب دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں لوگ مسیح یسوع کی تعلیمات کو اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں. مسیح یسوع نے زمین پر بڑے چھوٹے عرصے کی زندگی گزاری، بہت کم عرصہ وہ زمین پر رہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے اس چھوٹے عرصے کے باوجود بھی مسیح یسوع کی ذات کا اس دنیا میں ہونا پوری دنیا کے دور کو دو ادوار میں تبدیل کر دیتا ہے، جسے ہم BC اور AD کہتے ہیں، قبل از مسیح اور بعد از مسیح. یہ مسیح یسوع کی شخصیت جو انہوں نے زمین پر خدمت کی، جو انہوں نے زمین پر وقت گزارا، اس نے دنیا میں ایک گہرا اثر چھوڑا ہے. میرے عزیزوں، مسیح یسوع نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی. ہاں، بائبل مقدس کا مصنف خدا ہے، لیکن ایسا اور کوئی کتاب آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مسیح یسوع نے کوئی بک لکھی ہو، کوئی کتاب تحریر کی ہو. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو آج لائبریریز کی لائبریریز، والیومز کے والیومز، لاکھوں کروڑوں کتابیں پوری دنیا میں ملیں گی جو صرف مسیح یسوع کے بارے میں لکھی گئی. مسیح یسوع نے کبھی کوئی پینٹ نہیں کیا، کبھی کوئی میوزک نہیں کیا، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ میوزک مسیح یسوع کے بارے میں بنایا گیا، سب سے زیادہ موویز مسیح یسوع کی شخصیت پر بنائی گئی، سب سے زیادہ ادب آپ کو مسیح یسوع کی شخصیت کے بارے میں اس دنیا میں ملتا ہے. مسیح یسوع نے کبھی آرمی بلڈ نہیں کی، مسیح یسوع نے کبھی اپنی کوئی فوج نہیں بنائی، لیکن پھر بھی لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں مسیح یسوع کے لیے نذرانے کے طور پر پیش کی ہیں. مسیح یسوع نے
बड़ी महदूद खिदमत जमीन पर की, मुट्ठी भर शागिर्द थे, 12 शागिर्द थे मसीह यीशु के। लेकिन आप जानते हैं उन 12 शागिर्दों की बदौलत आज दुनिया का 30% हिस्सा मसीही है। दुनिया में सबसे ज्यादा, हालेलुया, दुनिया में सबसे ज्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो आपके यीशु के हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पैरोकार हैं किसी शख्सियत के तो वो किसके हैं? मसीह यीशु के। मसीह यीशु बहुत ज्यादा नासरत से ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं किया उन्होंने, बड़ा लिमिटेड रहे, लेकिन आपको दुनिया में हर जगह पे मसीह यीशु का नाम मिलेगा, मसीह यीशु की तालीमात मिलेगी। मसीह यीशु आज से 2023 साल पहले इस जमीन पर रहे और तकरीबन 3 साल की महदूद खिदमत की। लेकिन आप जानते हैं आज इस संडे सर्विस के बाद पूरी दुनिया में करोड़ों चर्चेज हैं जो मसीह यीशु की अजमत को अपने चर्चेज में बयान कर रहे हैं, जो उसके नाम की ताजीम कर रहे हैं। मसीह यीशु कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी नहीं गए, लेकिन दुनिया में आज लाखों करोड़ों यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज सिर्फ आपके यीशु की तालीम को बयान करने के लिए बनाए गए। क्या आपका मसीह अजीम है? जोरदार तालियां मसीह यीशु की जात के लिए। मसीह यीशु को अगर बयान करने की बात की जाए तो मेरे अजीजों मसीह यीशु को बयान करना नामुमकिन है, लेकिन यह बात सच है कि मसीह यीशु को नजरअंदाज करना हमारे लिए मौत का सबब बन सकता है। मसीह यीशु को इग्नोर करना तबाहकुन हो सकता है। मसीह यीशु के बारे में जानना, मसीह यीशु को जानना, मसीह यीशु से मोहब्बत करना है। और अगर मसीह यीशु से मोहब्बत करना है इसका मतलब है उस पर भरोसा करना है। और अगर मसीह यीशु पर भरोसा करना है तो इसका मतलब है कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। और इसीलिए हम मसीह यीशु के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, मसीह यीशु की शख्सियत को जितना भी जान सके हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने कहा मसीह यीशु को जानना, मुकम्मल तौर पर मसीह यीशु की उलूहियत को जानना शायद हमारे लिए नामुमकिन हो, क्योंकि हमारा जहन शायद महदूद हो, हमारी तहरीर कम पड़ जाए, हमारे अल्फाज महदूद हो जाए, शायद हमारा दिल उसकी उलूहियत को मुकम्मल तौर पर जज्ब ना कर सके। लेकिन मेरे जो खुदा का जिंदा कलाम मसीह यीशु की फजीलत को इतना वाज़ेह हम पर करता है कि ईमानदारों के लिए बड़ा आसान है कि मसीह यीशु के रुतबे, उसकी अजमत और उसकी फजीलत को अपनी जिंदगी में रख भी सके, सीख भी सके और तजर्बा भी कर सके। आमीन। मसीह यीशु के बारे में जब इक्तबास पढ़ा गया, बड़ा दिलचस्प इक्तबास, कुलुसियों के नाम मुकद्दस पौलुस का खत, उसमें मुकद्दस पौलुस मसीह यीशु की फजीलत को बयान करते हैं, मसीह यीशु की शख्सियत को बयान करते हुए नजर आते हैं। और वो बताते हैं कि मसीह यीशु सबसे पहले दर्जे पर है, फजीलत पर है, मसीह यीशु प्रीएमिनेंट है, वो सबसे ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा रुतबे वाला है। तो आज हम सिर्फ 3 चीजें सीखेंगे क्यों मसीह यीशु इतनी फजीलत रखता है। एक ईमानदार की जिंदगी में मसीह यीशु इतनी अहमियत क्यों रखता है, मेरी और आपकी जिंदगी में मसीह यीशु इतनी अहमियत क्यों रखता है। तो उसका पहला नुक्ता जो आज हम सीखेंगे वो ये है, यीशु ने खुदा बाप को हम पर जाहिर किया। सबसे पहले मसीह यीशु की फजीलत इसलिए अहम है, इसलिए वो सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि मसीह यीशु वाहिद वो जरिया है जिसने आसमानी बाप को आप पर जाहिर किया है। अगर आप 15वीं आयत पढ़े मेरे साथ, उसमें लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद हुआ। पौलुस रसूल कहते हैं कि यीशु जो है वो अनदेखे खुदा की क्या है? सूरत है, फेस है। वो खुदा जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, वो खुदा जिस तक कभी किसी की रसाई नहीं हुई, वो खुदा जिसको कभी किसी ने जाना नहीं, उस खुदा को बनी नौ इंसान पर अगर जाहिर किया है तो वो एक ही शख्सियत है, वो एक ही पर्सनैलिटी है, और वो शख्सियत है मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, जिसने बनी नौ इंसान पर खालिक को जाहिर किया है। इस आयत में पौलुस रसूल ने 2 लफ्ज इस्तेमाल किया है। एक लफ्ज इस्तेमाल किया है अनदेखे खुदा की सूरत। सूरत के लिए जो लफ्ज यूनानी जबान में इस्तेमाल हुआ है उसका इंग्लिश में तर्जुमा हुआ है आइकन। आपके लैपटॉप्स पर
آپ کے کمپیوٹرز پر آئیکنز ہوتے ہیں. جتنے لوگ اینڈرائڈ فون یوز کرتے ہیں, آپ کے موبائل میں جب آپ لاک کھولتے ہیں تو آپ کو فولڈرز نظر آتے ہیں. ایک تصویروں کا فولڈر ہوتا ہے, ایک ویڈیوز کا فولڈر ہوتا ہے, ایک سیٹنگز کا فولڈر ہوتا ہے. مختلف قسم کے آئیکنز آپ کے موبائل کی اسکرین پر نظر آتے ہیں. اور جب آپ نے تصویریں دیکھنی ہوتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تصویروں والے آئیکن کو دباتے ہیں. جب آپ نے اپنے موبائل میں ویڈیوز دیکھنا ہوتی ہیں تو آپ ویڈیو والے آئیکن کو دباتے ہیں. سو آپ ان آئیکنز کی مدد سے آپ اپنی اس ریکوائرمنٹ تک پہنچ سکتے ہیں. وہ آئیکن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی تصویریں یہاں پر ہیں, آئیکن بتاتا ہے آپ کے موبائل میں موجود ویڈیوز یہاں پر ہیں. سو وہ آئیکن آپ پر ظاہر کرتا ہے. اور مسیح یسوع کے لیے پالوس رسول نے یہ لفظ استعمال کیا, اگر آپ خدا تک رسائی کرنا چاہتے ہیں, آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں, تو آپ کو فلسفے کی ضرورت ہے, آپ کو لاجک کی ضرورت ہے, آپ کو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت ہے. نو, آپ کو صرف ایک آئیکن کی ضرورت ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. آپ صرف مسیح یسوع تک رسائی کریں تو آپ خدا باپ تک پہنچ جاتے ہیں. مسیح یسوع نے اس اندیکھے خدا کو بنی نوع انسان پر ظاہر کیا ہے اور کوئی کر نہیں سکتا. مسیح یسوع واحد وہ آئیکن ہے. کولوسیوں 2 کی 9 آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے, کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. الوہیت کی ساری معموری کس میں سکونت کرتی ہے؟ مسیح یسوع میں. اگر آپ الوہیت کو دیکھنا چاہتے ہیں, خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں, خدا کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں, تو مسیح یسوع آپ کے لیے یہ ممکن کر چکا ہے. پھر متی کی انجیل 11 کی 27 آیت میں لکھا ہے, میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا. یہ مسیح یسوع کہہ رہے ہیں, اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے, اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے, اور اس کے جس پر بیٹا اس کو ظاہر کرے. مسیح یسوع کو باپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اور باپ کو مسیح یسوع کے علاوہ یعنی بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. خدا کو جاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ مسیح یسوع ہے. یسوع کہتا ہے, جب تک میں تم پر ظاہر نہ کروں تم باپ کو جان نہیں سکتے. اونلی ون وے, خالق تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے, اندیکھے خدا کو جاننے کا ایک ہی راستہ ہے, اس الوہیت کو پہچاننے کا ایک ہی راستہ ہے. اسی لیے یوحنا کی انجیل 14 کی 6 آیت میں مسیح یسوع نے فرمایا, راہ, حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اٹس امپاسبل. باپ تک جانے کا واحد ذریعہ کون ہے؟ مسیح یسوع ہے. وہ اندیکھے خدا کی کیا ہے؟ صورت. He is the face of God. وہ خدا کا آئیکن ہے, خدا کی تصویر ہے, خدا کی صورت ہے. آپ اگر خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو مسیح یسوع واحد وہ ذریعہ ہے جو آپ کو باپ تک لے جا سکتا ہے. خداوند کے ایک عظیم خادم جیری وائنز کہتے ہیں, آپ تصور کریں مسیح یسوع کامل انسان تھے جب وہ زمین پر رہے, جب وہ مجسم ہوئے تو وہ کامل انسان تھے, لیکن یہ بات سچ ہے کہ ان کے اندر مکمل الوہیت تھی. بائبل مقدس فرماتی ہے ساری الوہیت مسیح یسوع میں کیا کرتی ہے؟ سکونت کرتی ہے. ساری الوہیت مسیح یسوع میں ہے. اب مسیح یسوع کامل انسان بھی ہے اور کامل خدا بھی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں مسیح یسوع جب چھوٹی سی عمر میں ہیکل میں جاتے ہوں گے اور وہاں پر بڑے بڑے بائبل اسکالرس کے ساتھ جب بات کرتے ہوں گے, اور وہ باتیں بھی ان کو بتاتے ہوں گے جو ان کو خود بھی یاد نہیں ہوں گی, اور وہ بائبل اسکالرز اپنی داڑھی کھجاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے, بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو مسیح یسوع کہتے ہوں کہ آپ میری ماں کی سائڈ پر میری عمر پوچھ رہے ہیں یا میرے باپ کی سائڈ پر؟ کیونکہ جب وہ کامل انسان تھا تو ابن مریم, اور جب کامل خدا تھا وہ ابن خدا تھا. اور یسوع کہتے ہوں کیا آپ میری ماں کی سائڈ پر میری عمر پوچھ رہے ہیں ابن مریم کے طور پر؟ تو میں 12 سال کا ہوں. اور اگر میرے باپ کی سائڈ پر ابن خدا کے طور پر میری عمر پوچھتے ہیں تو میں اتنا ہی بوڑھا ہوں جتنا میرا باپ بوڑھا ہے. میں بھی ازل سے ہوں اور میں ابد تک ہوں. وہ ایک ہی وقت میں ابن مریم یعنی کامل انسان تھا, اور ایک ہی وقت میں ابن خدا کامل خدا بھی تھا.
اور جب وہ ابن مریم تھا تو وہ صلیب پر کہتا ہے میں پیاسا ہوں، اور جب ابن خدا تھا تو کہتا ہے زندگی کا پانی میں ہوں۔ مسیح یسوع جب ابن مریم تھا تو اسے بھوک لگتی تھی، بھوک کا احساس ہوتا تھا، لیکن جب ابن خدا تھا تو ایک بچے کی 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو لیا اور 5000 سے زیادہ کو کھلا دیا۔ جب وہ ابن مریم تھا تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے سر دھرنے کو جگہ بھی نہیں ہے، لیکن جب ابن خدا تو پھر پوری کائنات اس کی ہے۔ جب وہ ابن مریم تھا تو اپنے دوست لازر کی موت پر رو دیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے کیونکہ وہ ابن مریم تھا، کامل انسان تھا، لیکن جب ابن خدا تھا تو لازر کی قبر کے باہر کھڑا کر کہتا ہے لازر قبر سے باہر اور 4 دنوں کی مردہ کو زندہ کیا۔ پولس کہتا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت، اس کامل انسان میں آپ کو ایک کامل خدا کا تجربہ نظر آئے گا، آپ اس میں خدا کو جانیں گے، خدا کو دیکھیں گے، کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ مسیح یسوع کون ہے؟ خدا ہے۔ مسیح یسوع کون ہے؟ خدا ہے۔ اور پھر پولس رسول نے دوسرا لفظ استعمال کیا ہے، تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ انگلش میں لفظ لکھا فرسٹ بورن۔ بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں شاید مسیح یسوع کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب خدا نے تخلیق کا کام کیا تو سب سے پہلے مسیح یسوع کو پیدا کیا۔ That's not true۔ یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اگر اسٹیٹمنٹ کو غور سے پڑھیں تو لکھا ہے تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، مولود ہوا نہیں، مولود ہے۔ مسیح یسوع وہ سیلف ایگزسٹنٹ گاڈ ہے، خدا ہے جو پہلے سے ازل سے موجود ہے، اب تک موجود رہے گا، جس کا کوئی شروع نہیں ہے اور جس کا کوئی آخر نہیں ہے۔ اسی لیے تو یسوع نے فقیر فیشن سے کہا پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں۔ یسوع نے یہ نہیں کہا میں تھا یا میں ہوں گا، یسوع نے کہا میں ہوں۔ مسیح یسوع نے اپنی الوہیت کا اظہار کیا۔ اور اگر پولس رسول یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود، تو وہ مسیح یسوع کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، مسیح یسوع کے آنر کی بات کرتے ہیں، مسیح یسوع کے رتبے کی بات کرتے ہیں کہ مسیح یسوع ان سے پہلے اس لیے ہے کیونکہ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ ہی از دا ون جو سورس ہے ہر ایک چیز کے پیدا ہونے کا۔ اور میں نے کہا مسیح یسوع ہماری زندگی میں پہلا رتبہ اس لیے رکھتا ہے، سب سے زیادہ فضیلت اس لیے رکھتا ہے کہ ہم پر آسمانی باپ کو ظاہر کس نے کیا ہے؟ مسیح یسوع نے ہم پر آسمانی باپ کو ظاہر کیا ہے۔ وہ خدا جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، مسیح یسوع نے زمین پر انسان بن کر میرے لیے، آپ کے لیے، عام انسان کے لیے ممکن کیا کہ وہ خدا کو دیکھ سکے۔ دوسری چیز ہم جو سیکھیں گے، ساری معموری مسیح میں سکونت کرتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات کہ جتنی معموری ہے، جتنی تخلیق ہے، جتنی کائنات ہے، وہ سب کیا ہے؟ مسیح یسوع میں سکونت کرتی ہے۔ It rests there۔ وہ سب مسیح یسوع سے اپنی انرجی لیتی ہے، مسیح یسوع کے وسیلے سے سسٹین کرتی ہے، مسیح یسوع کے وسیلے سے قائم رہتی ہے۔ آپ کا مسیح یسوع آپ کے ماضی، آپ کے حال اور آپ کے مستقبل کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ اس کے پاس آپ کا وقت، آپ کی زندگی، آپ کے حالات کا کنٹرول ہے۔ وہ اس قدر فضیلت رکھتا ہے، وہ اس قدر پری ایمیننس رکھتا ہے۔ میں نے کہا دوسرا نقطہ ہے ساری معموری مسیح میں سکونت کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ پہلا نقطہ اس میں ہم سیکھیں گے کیونکہ تخلیق کا وسیلہ کون ہے؟ 16ویں آیت میرے ساتھ پڑھیے گا۔ لکھا ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی۔ کس میں پیدا کی گئی؟ مسیح یسوع میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے، کس کے وسیلے سے؟ یسوع کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی۔ اور ہم پہلا نقطہ یہ سیکھ رہے ہیں اس دوسری ہیڈنگ میں کہ تخلیق کا وسیلہ کون ہے؟ مسیح یسوع کے منہ سے الفاظ نکلے اور کثرت سے کائنات پیدا ہوئی، اس کے منہ کے دم سے چیزیں پیدا ہوئی۔
आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि तख्लीक नहीं हुई, आप नजरिया इर्तिका को कबूल करें थोड़ी देर के लिए। फर्ज करें कि एवोल्यूशन ठीक है, सब कुछ बाई चांस पैदा हुआ। साइंसदान कहते हैं कि सब कुछ एक्सीडेंटली पैदा हुआ, हादसाती तौर पर। क्या आप जानते हैं इसके कितने गलत असरात बनी नौ इंसान पर हो सकते हैं? पहली बात, आपकी निजात को खतरा है। कैसे? अगर तकलीफ नहीं हुई, सब कुछ बाई चांस पैदा हो गया, सब कुछ अपने आप पैदा हो गया, इसका मतलब है कोई बाग़ अदन नहीं बना, इसका मतलब है कोई आदम नहीं बना, कोई हवा नहीं बनी, कोई हुक्म नहीं दिया गया, कोई नाफरमानी नहीं हुई, कोई फल नहीं खाया गया, कोई गुनाह नहीं हुआ। जब गुनाह नहीं हुआ तो गुनाह के लिए कोई गजब नहीं है, और अगर गजब नहीं है तो फिर बनी नौ इंसान को नजात की जरूरत नहीं है। नजरिया इत्तिका आपकी जिंदगी से बड़ी आसानी के साथ मसीह यीशु के तसव्वुर को खींच सकता है। अगर नजरिया इत्तिका पर यकीन किया जाए और मुआशरे में नौजवानों को ये बताया जाए कि आप एक बंदर की नस्ल से हैं, एक गोरिल्ला था और फिर उसकी नस्ल से बनते बनते हम इंसान बन गए, तो आपको नहीं लगता कि आपके नौजवान जानवरों का सा बर्ताव करेंगे? क्योंकि जब हमें यही नहीं पता हम कहाँ से हैं, तो हम ये नहीं जानेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब हमें अपने ओरिजिन का नहीं पता, जब हमें अपने आगाज का नहीं पता, हम कहेंगे बाई चांस पता नहीं कौन किसके साथ टकराया तो जमीन बन गई, सूरज बन गया, और फिर जानवर बने, और फिर उन जानवरों से बेहतर होते 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 इंसान बन गए। ऐसा नहीं है। पूरी कायनात को तख्लीक किया गया है बाकायदा प्लान के साथ, बाकायदा सिस्टम के साथ। डार्विन्स ब्लैक बॉक्स एक किताब है, उस किताब में जिंदगी की पेचीदगियों के बारे में लिखा गया है, और साइंसदान ने उस किताब में लिखा है जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी पेचीदा है कि इंसान क्या पूरी इंसानियत भी उसकी स्टडी करे तो उसे नहीं जान सकती। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इंसान की जिंदगी के, इंसान के बदन में से एक खुलिया लें। हम जो है, इंसानी बदन जो है ट्रिलियंस ऑफ खुलियों के साथ मिलकर बना है। अब अगर लगे कि ये ट्रिलियंस क्या बला है तो समझ लें हम गिन नहीं सकते। हमारा जिस्म जो है, हमारा बदन जो है वो कितने खुलियों के साथ मिलकर बना हम गिन नहीं सकते, बहुत ज्यादा लातादाद है। और उन खुलियों में से सिर्फ एक खुलिया वो कहते हैं हम लें, और उस खुलिये को खोला जाए, उस खुलिये को देखा जाए, तो उस खुलिये में पूरी दुनिया मौजूद है। उस एक खुलिये के अंदर पूरी दुनिया है। 9th क्लास को मैं सेल का चैप्टर पढ़ा रही थी, और इनको वो चैप्टर बहुत बुरा लगता है क्योंकि बहुत ही लंबा है, और उसमें इतना कुछ सेल के बारे में, खुलिये के बारे में लिखा है कि इंसान बोर हो जाए, इतनी डिटेल। और वो कहते हैं, वो साइंसर अपनी किताब में लिखते हैं, खुलिये के अंदर बहुत सी चीजें हैं, उन बहुत सी चीजों में से आप एक चीज ले लें जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, और उस क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं जिसको आप डीएनए कहते हैं। डीएनए का नाम तो सुना होगा। और वो कहते हैं वो डीएनए इतनी इंफॉर्मेशन आपके बारे में रखता है। आपके जिस्म में मौजूद एक छोटा सा खुलिया, उस खुलिये के अंदर भी एक छोटा सा हिस्सा है जिसे आप डीएनए कहते हैं, और वो डीएनए आपके बारे में बड़ी मालूमात रखता है। आपका रंग कैसा है, आपका कद कैसा है, आपकी आंखों का रंग कैसा है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी मालूमात एक डीएनए में मौजूद है। और वो कहते हैं अगर उस पूरे डीएनए की मालूमात को हम तहरीर करना शुरू करें तो आप जानते हैं कितनी किताबें लगेंगी? 600,000 किताबें लगेंगी सिर्फ उस डीएनए की मालूमात को लिखने के लिए। अब आप मुझे बताएं, आपको लगता है ये बाई चांस बना? नो, इट कैन नॉट बी बाई चांस। एक डीएनए को लिखने के लिए आपको 600,000 किताबें चाहिए, और कोई इंसान उठे और कहे कि ये बाई चांस हो गया? नो वे, इसको तख्लीक किया गया है, इसको बाकायदा प्लान के साथ बनाया गया है, और ये काम किया है आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने। उसने आपके अंदर डीएनए रखा है जो आपकी पहचान है, उसने आपके अंदर खुलियों को रखा है, सिस्टम को रखा है। और बाइबल मुकद्दस बताती है सब चीजें उसी के वसीले से पैदा है। यूहन्ना रसूल लिखता है कुछ भी उसके बगैर पैदा नथिंग। एक O2 ऑक्सीजन है, वो भी आपके यीशु के बगैर पैदा नहीं। आपके जिंदगी के छोटे से छोटे मामलात भी आपके यीशु के वसीले से
पैदा हुए। आपका बदन, आपकी कायनात आपके मसीह यीशु के वसीले से पैदा हुई है। ये पहली वजह है कि मसीह यीशु में सारी मामूरी क्या करती है? सुकूनत करती है। दूसरी वजह, तख्लीक हुई तो मसीह यीशु के वसीले से, लेकिन तख्लीक आज तक कायम कैसे है? उसकी वजह भी आपका यीशु ही है। पानी पानी रहता है, इसकी वजह कौन है? सुबह जब आप उठते हैं तो आपका बदन ही रहता है। आप जानते से कौन कायम रखता है? मसीह यीशु है। कायनात को तख्लीक किया गया, सितारों को बनाया गया, सूरज को फ्यूल आपका यीशु देता है जो हर रोज जलता है, रोशनी और हरारत मुहैया करता है। उस सारे सिस्टम को, सितारों को, कायनात को, जो अपनी अपनी जगह खड़े हैं और आज भी कायम है, उन चीजों को कायम रखने के लिए जो चीज है वो आपका यीशु है। मिसाल के तौर पर ये डाइस है। आपसे कोई पूछेगा ये डाइस की जो पीसेस हैं ये आपस में कैसे जुड़े हैं, तो हो सकता है आप कहेंगे ग्लू की मदद से या कीलों की मदद से। ये डाइस अगर अभी अपनी पोजीशन में है तो उसकी वजह या तो ग्लू है जो लगी है या फिर कील है जो उनको जोड़े हुए हैं। तो पूरी कायनात अगर आज जब से बनी है और आज तक कायम है और वैसी ही की वैसी है, वैसे ही काम कर रही है, सितारे वैसे ही घूम रहे हैं, जमीन वैसे ही काम कर रही है, सूरज वैसे ही रोशनी देता है, सूरज वैसे ही निकलता है और गरूब हो जाता है, तो उस सारे की वजह आपका खुदावंद यीशु मसीह है। ये चीजें उसमें कायम रखती हैं। अब कोई कहे कि नहीं ये तो कुदरती कवानीन है, हो सकता है कोई साइंस का स्टूडेंट आपसे कहे नहीं ये तो कुदरती कवानीन है, ये ऐसे होने ही हैं। तो मैं आपको बताऊं कोई कुदरती कवानीन नहीं, सारे कवानीन आपके यीशु के हैं, कुदरत उनकी पैरवी करती है। आपके यीशु ने उन कवानीन को बनाया है। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफा, उसका 40वां बाब और उसकी 26वीं आयत। मैंने कहा कुदरत है जो आपके मसीह के बनाए हुए कवानीन की पैरवी करती है। नो नेचुरल लॉज, जितने कवानीन हैं वो आपके यीशु ने बनाए हैं और पूरी कुदरत उन्हीं की पैरवी कर रही है। यशायाह नबी का सहीफा 40वां बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो कि इन सब का खालिक कौन है, वही जो उनके लश्कर को शुमार करके निकालता है और उन सबको नाम बनाम बुलाता है। मैंने एक दफा फेसबुक पे कनाडा के घरों की पिक्चर्स देखी। कनाडा में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है तो उनकी जो छतें हैं वो ऐसे होती हैं। कितने लोगों ने देखी हैं? उनकी छतें हमारी छतों जैसी नहीं होती हैं क्योंकि बर्फ ज्यादा होने के बाद छत गिर भी सकती है, तो उनकी छतें ऐसे होती हैं ताकि बर्फबारी जब हो तो बर्फ नीचे को गिर जाए, उसको उतारा जा सके। तो किसी ने नीचे लिखा हुआ था, गोरे जितनी मर्जी तरक्की कर लें हमारी तरह छत पे नहीं सो सकते, क्योंकि उनकी छतें ऐसे हैं, ऐसे नहीं है। तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप छतों पे सोते हैं। हम तो गर्मियों में छतों पे सोते हैं। तो ये साइना भी कहता है जब कभी छत पे सोए हो तो कभी देखा है आसमान की तरफ? कहते नजर उठाओ और देखो इतने सितारे लामहदूद। अब आप सितारों की जानिब देखें तो शायद हमें इतने से एक डॉट की तरह लगते हैं, लेकिन आप जानते हैं कायनात में इतने इतने बड़े सितारे हैं कि आपकी जमीन उनके करीब कुछ भी नहीं। इतने बड़े बड़े सितारे हैं और वो जहां पर ठहराए गए हैं, जब से ठहराए गए हैं, वो वहीं के वहीं पर खड़े हैं। वो टच से मस नहीं होते, अपनी वर्किंग से, अपने ऑर्बिट से वो हिलते नहीं हैं। यशायाह नबी आपको और मुझे जानते हैं क्या बताना चाहता है? वो सितारे जिनको सदियों से साइंसदान खोज रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, आपका यीशु उनको नाम बनाम बुलाता है। आपके यीशु ने उन सितारों के नाम रखे हैं। जब उसने उनको फिजा में, जब उनको स्पेस में ठहराया तो आपका यीशु उनके नाम भी जानता है। उसने तख्लीक का काम किया और पौलुस कहते हैं सब चीजें उसी के वसीले से पैदा हुई और सब चीजें उसी के वसीले से कायम हैं। अगर है तो आज तक उसकी वजह कौन है? मसीह यीशु है। उसकी वजह जो चीजें आज भी कायम रहती हैं। आप लाइट की बात करें जो सूरज से जमीन तक आती है, 1,86,282 मील पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है लाइट। और हमारा सूरज
93 मिलियन दूर है हमारी जमीन से। अगर आप सूरज पर जाने की ख्वाहिशमंद हैं तो पहले मैं ये बता दूं, जब आप ऊपर जाएंगे तो बचेंगे नहीं, क्योंकि इतनी हीट है सूरज के पास। फिर भी जाने की ख्वाहिशमंद हुए तो आपको स्पीड की लाइट से जाना पड़ेगा, और अगर आप स्पीड की लाइट से जाते हैं तो 8.5 मिनट में आप सूरज तक पहुंच सकते हैं। हमारी जमीन के जो सबसे करीब तरीन सितारा है वो 27 मिलियन मील दूर है हमारी जमीन से, और ये एक गैलेक्सी की मैं बात कर रही हूँ। न जाने कितनी गैलेक्सीज, कितने सितारे हैं जो अभी तक साइंसदान जान भी नहीं सके हैं। और आपको लगता है ये सब बाई चांस हुआ? ये सितारे, ये सूरज, ये जमीन, ये सब तख्लीक बाई चांस है? बिलीव मी, इन सबको खलक किया गया है। और आज भी अगर ये अपनी अपनी जगह पर कायम है तो उसकी वजह आपका और मेरा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया, यीशु के लिए जोरदार तालियां। आखिरी नुकता इस दूसरी हेडिंग का जो हम सीखेंगे, क्यों मसीह यीशु जो है उसमें सारी मामूली सुकूनत क्यों करती है? क्योंकि तख्लीक का वसीला कौन है? मसीह यीशु है। तख्लीक को आज तक कायम रखने वाला कौन है? मसीह यीशु है। और तीसरी बात, तख्लीक का मकसद कौन है? पूछा जाए ये दुनिया किस जानिब जा रही है, ये जंगो जदल किस जानिब जा रहा है, ये हुकूमतें, ये रियासतें, ये सारे सिस्टम, ये दुनिया, ये तरक्की, ये साइंस, ये सब कुछ किस जानिब जा रहा है? तो उसका जवाब एक ही है, ये आपके यीशु की जानिब जा रहा है। क्योंकि पूरी कायनात आपके और मेरे यीशु के लिए तख्लीक की गई। आप जानते हैं ये पूरी दुनिया में जो कुछ भी हालात हो रहे हैं, हो सकता है बहुत बुरे हों, हो सकता है किसी साइड पर बहुत अच्छे हों, लेकिन ये पूरी कायनात, इसकी तख्लीक, इसका सिस्टम, इसका निज़ाम, इसकी रियासतें, हुकूमतें, इख्तियारात सब एक ऐसे नुक्ते की जानिब जा रहे हैं जहां पर मेरे और आपके खुदा और उसके इकलौते बेटे यीशु की बादशाहत कायम होने वाली है। इसीलिए मसीह यीशु ने कहा कि आपने दुआ में कहना है, खुदावंद तेरी बादशाही आए। आप जानते हैं वक्त बहुत नजदीक है, ये दुनिया शेप ले रही है, उस जानिब जा रही है जब यीशु की बादशाहत कायम होगी। कितने लोग मुंतजिर हैं कि यीशु की बादशाहत कायम हो। हालेलुया। गुड लाइफ चर्च अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि ईमानदार खुदा की बादशाही के इंतजार में हो, इस बात के लिए तैयार हो। अपनी दुआओं में कहा करें, खुदावंद तेरी बादशाही कायम हो और मैं उसका हिस्सा हूँ। और मैं खुदा से कहती हूँ, खुदावंद तेरी बादशाही बड़ी जल्दी आए और गुड लाइफ चर्च मेरे साथ उसका हिस्सा हो। हमें हम उस बादशाही का हिस्सा बने। यशायाह नबी का सहीफा निकालिएगा मेरे साथ, 33वें बाब की 22वीं आयत पढ़ेंगे। मैंने कहा तख्लीक का मकसद कौन है? मसीह यीशु है। तख्लीक का मकसद कौन है? सारी तख्लीक मसीह यीशु के वसीले से हुई, सारी तख्लीक मसीह यीशु के वसीले से कायम है। और तीसरी बात, इस सारी तख्लीक का मकसद कौन है? मसीह यीशु है। और यशायाह नबी हम पर एक और बात जाहिर करते हैं मसीह की बादशाहत के बारे में। यशायाह नबी का सहीफा 33वें बाब की 22वीं आयत लिखा है, क्योंकि खुदावंद हमारा हाकिम है, खुदावंद हमारा शरीयत देने वाला है, खुदावंद हमारा बादशाह है। खुदावंद हमारा क्या है? हाकिम है, खुदावंद हमारा शरीयत देने वाला है और खुदावंद हमारा। आपको पता है किसी भी रियासत में, किसी भी बादशाहत में ये तीन चीजें हैं जो सारा कुछ कंट्रोल करती हैं। लेकिन अब जो आसमान की बादशाही आ रही है, आपके और मेरे लिए अच्छी खबर ये है कि उस बादशाहत में तीनों चीजें आपका यीशु ही है। हाकिम भी वो है, शरीयत देने वाला भी वो है और बादशाह भी वही है। और फिर अगली बात यशायाह नबी लिखते हैं, कहते हैं वही हमको बचाएगा। आमीन। क्योंकि हमारा हाकिम भी वो है, हमारा बादशाह भी वो है, शरीयत देने वाला भी वो है। और अगर सब कुछ वही है तो फिर हमें कौन बचाएगा? हमें भी वही बचाएगा। आमीन। सो उसकी बादशाहत मैंने कहा कायम होने वाली है। ये सारी तख्लीक का मकसद मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह। तीसरी और आखिरी बात, पहली बात हमने सीखी, मसीह यीशु को फजीलत इसलिए हर एक चीज पर हासिल है, क्यों? क्योंकि मसीह यीशु वाहिद वो ज़रिया जिसने खुदा को बनी हुई इंसान पर जाहिर किया है। दूसरी बात,
सारी मामूरी, कायनात में जितनी भी मामूरी है वो सारी किसमें सुकूनत करती है? मसीह यस्सु में। इसका मतलब यह है कि आपका जो मुस्तकबिल है वो आपके यस्सु के हाथों में है। इसका आसान मतलब ये है। तीसरी और आखिरी बात हम सीखेंगे वो ये है, बाप से मिलाने वाला अगर कोई शख्सियत है, बाप से मिलाने वाला अगर कोई जरिया है, तो वो भी कौन है? मसीह यस्सु। आपको ये बात दिलचस्प नहीं लगती कि पौलुस रसूल कुलुसियों की कलीसिया को खत लिखते हुए मसीह यस्सु की अजमत को बयान करता है, मसीह यस्सु के रुतबे को बयान करता है। वो अव्वल है, वो सबसे पहले मौजूद है, उसका दर्जा सबसे ऊपर है, उसके वसीले से सब कुछ पैदा हुआ, उसी के वास्ते सब कुछ पैदा हुआ, उसी में सब चीजें कायम हैं। और फिर पौलुस रसूल अगली बात क्या करते हैं? और वो सलीब पर लटका है। पौलुस रसूल क्या कहते हैं? वो यस्सु जो कुदरत वाला है, जो रुतबे वाला है, जो अजमत वाला है, वो सलीब पर लटका है। वो खाली जिसके मुंह के दम से सब कुछ पैदा हुआ, जिसके वसीले से कायनात आज भी कायम है, जिसके लिए सब कुछ पैदा हुआ, वो यस्सु मसलूब हुआ, सलीब पर मुआ। ये बात मैं आपको बता दूं, इस क्रिसमस पर हमें अपने दिलों में रखने की जरूरत है। इसके बगैर क्रिसमस अधूरा है। हम क्रिसमस को नहीं जान पाएंगे जब तक हम इस तस्वर को नहीं जानते जो बात पौलुस रसूल हमें बताना चाह रहे हैं। पौलुस रसूल बताना ये चाहते हैं, वो यीशु जिसने बीज को पैदा किया, वो यीशु जिसने पौधों को, दरख्तों को, जंगलात को, जिसके मुंह के दम से पौधे कसरत से पैदा हुए, जिसके मुंह के दम से दरख्त पैदा हुए, वो यीशु एक दरख्त पर लटका है। मुझे फरहान साहब की सरमन में एक बात बड़ी बरकत के लगी। उन्होंने कहा अपने घरों में क्रिसमस ट्री जरूर सजाएं, ये दरख्त रखें अपने घरों में, क्योंकि ये आपको नजात और रोशनी और यीशु के नूर होने का इजहार देती है। लेकिन इस दरख्त की एक खासियत है कि ये दरख्त आपको इस दरख्त के पास लेकर आता है। ये दरख्त आपको इस दरख्त की जानिब इशारा करता है। और जब आप अपने घरों में ये दरख्त सजाएं तो इस दरख्त को कभी भी ना भूलें। वो यीशु, मैंने कहा जिसने दरख्तों को, पौधों को, सब चीजों को पैदा किया, वो मेरे और आपके लिए, यानी खालिक अपनी मखलूक के लिए लकड़ी पर लटका है। वो यीशु मेरे और आपके लिए मसलूब हुआ। वो यीशु जिसके मुंह के दम से समुद्र पैदा हुए, दरिया पैदा हुए, झरने बने, नदियां बनी, पानी का सारा निजाम बना, और वो सलीब पर लटका और वो कहता है मैं प्यासा हूं। वो यीशु जो सूरज को फ्यूल देता है कि सूरज रोशनी दे, हरारत दे, निजाम को मेंटेन करे, वो यीशु उसी सूरज की तपिश में सलीब पर लटका प्यास से तड़प रहा है। और पौलुस रसूल चाहते हैं कि ईमानदार जाने कि वो यीशु जिसको हर चीज पर फजीलत हासिल है, वो यीशु जो हर एक चीज पर इख्तियार रखता है, वो मेरे और आपके लिए मसलूब हुआ। हम क्रिसमस को मनाएं मसीह की फजीलत के बगैर नहीं। आपको सलीब पर मसीह यीशु की अलूहियत और मसीह यीशु की मौत साथ में नजर आती है। कलवरी पर बहुत से लोग मसलूब हुए, बहुत से लोगों को सलीब दिया गया, लेकिन वाहिद यीशु है, जब वो मसलूब हुआ तो तारीख बदल गई। हम गाते हैं ना गीत, यूं तो कलवरी के पहाड़ पर हुई नस्ब कितनी ही सूलियां, मगर इन सलीबों के शहर में तेरी सलीब मुझे जुदा लगी। मसीह यीशु की अलूहियत है जो उस कलवरी पर पड़ी सलीब को दूसरी सलीबों से फर्क कर देती है, और मसीह की मौत है जो मसीह की अलूहियत को हम पर जाहिर करती है। और मसीह यीशु का मसलूब होना इस बात का इजहार है कि मसीह यीशु जो हमारा हाकिम है, जो हमारा शरीयत देने वाला है, जो हमारा बादशाह है, वही हमको बचाएगा। और मैंने कहा आखिरी नुकता है कि मसीह यीशु वाहिद वो जरिया जिसने हमें बाप से मिलाया है। अगर आप मेरे साथ 20वीं आयत से पढ़ें, कुलुसियों के नाम जो खत अभी हमने पढ़ा उसके पहले बात की 20वीं आयत से पढ़िएगा। और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, ख्वाह वो जमीन की हो ख्वाह आसमान की। और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीले से तुम्हारा भी मेल कर लिया। अब बात बड़ी गौर तलब है, जो पहले खारिज
और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे। हमारी बात हो रही है, ये मेरी आपकी बात हो रही है। और पौलुस कहते हैं पहले दुश्मन थे ताकि वो तुमको मुकद्दस बेऐब बेइल्जाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे। पौलुस रसूल ये बताना चाह रहे हैं वो मसीह जिसके वसीले से सब कुछ पैदा हुआ, जिसके वसीले से सब कुछ कायम है, जिसकी इतनी फजीलत है, जिसका इतना रुतबा है, जिसकी इतनी इज्जत है, जिसका इतना ऑनर है, वो मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर हुआ। यह है क्रिसमस की हकीकत। वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए। अब जब वो कामिल इंसान बना तो उसने मेरा और आपका हाथ थाम लिया। उसने बनी न इंसान का, गुनहगार का, जो खुदा के दुश्मन थे, जो खुदा के गजब के फरजंद थे, उनको उसका हाथ थामते हुए मसीह यीशु ने कामिल इंसान होते हुए इंसानियत के मुशाबे हुआ। इंसान गुनहगार जो था उसका हाथ थामा और इब्ने खुदा होते हुए दूसरे हाथ से उसने खुदा बाप का हाथ थामा और एक नुक्ते पर, जिसे हम कलवरी कहते हैं, जिसे हम सलीब कहते हैं, उस नुक्ते पर उसने गुनहगार और आसमानी बाप की सुलह कराई। वो लम्हा था जब उसने मुझे और आपको बाप से मिला दिया। हमने सीखा कि मसीह यीशु को किस कदर फजीलत हासिल है। मसीह यीशु पूरी कायनात में कितनी फजीलत रखता है, कितनी इज्जत है, कितना ऑनर है। चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, उसके वसीले से कायम है। चीजें उसी के वसीले से आज तक कायम है, उसी के लिए पैदा हुई हैं। इतनी फजीलत है मसीह की, इतना रुतबा है मसीह का, इतनी इज्जत है मसीह की। तो मेरे और आपके लिए आज ये सवाल है जो हम आज यहाँ से लेकर जाएंगे कि आपकी जिंदगी में मसीह की फजीलत क्या है? आपकी जिंदगी में मसीह की क्या अहमियत है? आपकी जिंदगी में मसीह यीशु का दर्जा क्या है? क्या रुतबा है आपकी जिंदगी में यीशु का? जब लफ्ज यीशु आपकी जिंदगी में आता है तो आपके जहन में कौन सा मकाम आता है? एलिस ए फुलर खुदावन के बड़े अजीम खादिम, अपने वक्त के बड़े अच्छे प्रीचर रहे हैं। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आप जानते हैं जब उन्होंने अपनी बीवी को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने क्या कहा था उससे? उन्होंने अपनी बीवी से कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी में दूसरे दर्जे की अहम शख्सियत बनना पसंद करोगी? क्या कहा उन्होंने? क्या तुम मेरी जिंदगी में दूसरे दर्जे की अहम शख्सियत बनना पसंद करोगी? आप जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसकी जिंदगी में, उस खादिम की जिंदगी में पहला दर्जा किसका था? मसीह यीशु का। आमना को पता होना चाहिए कि मैं फरहान की जिंदगी में कौन से नंबर पे आती हूँ? दूसरे नंबर पर। कितनी बीवियां हैं यहाँ पर जो जानती हैं कि मैं अपने शौहर की जिंदगी में दूसरे नंबर पर हूँ, इसलिए नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई और औरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी जिंदगी में पहला दर्जा यीशु का है। या कितने शौहर यहाँ पर बैठे हैं कि मेरी बीवी की जिंदगी में पहला दर्जा मेरा नहीं बल्कि मसीह यीशु का है। और मैंने कहा आज बात मसीह की फजीलत की है। आप इस सोच के बगैर क्रिसमस नहीं मनाइएगा, वरना आप में और गैर अक़वाम में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर आपकी जिंदगी में मसीह यीशु को फजीलत हासिल नहीं, मसीह का सही रुतबा आपकी जिंदगी में नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में मसीह का पहला दर्जा नहीं है, तो आप उन गैर कौमों की तरह है जो क्रिसमस सिर्फ नए कपड़े पहनना, क्रिसमस ट्री सजाना, अच्छे खाने खाना और पार्टीज करना समझते हैं। सही क्रिसमस यह है कि आप मसीह की फजीलत को अपनी जिंदगी में अपनाएं। आज ये सवाल हम सब अपने साथ लेकर जाएंगे और सोचेंगे कि मेरी जिंदगी में मसीह यीशु का क्या मकाम है। यही हकीकी क्रिसमस है। खुदावंद आज के पाक नाम के वसीले सबको बढ़िया। खुदा के पाक